Good morning, everyone. Welcome to my channel, and I hope you are in good health and in good spirits. And dear students, today we are going to start chapter number 7 of Goodbye, Mr. Chips, because I think it's been quite a while that we have not read this novel. So let's start the reading and then we will explain it, and also we will have the translation. So, and so it stood, a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections. विविड पैच एक चमकता हुआ पेबंद, एक ऐसी चीज़ जो वाज़े तौर पे नज़र आती है. कास्टिंग अ रेडियंस, रेडियंस बोलते हैं रोशनी को. रिकलेक्शंस, याददाश्त. Again, once again, he is thinking about incidents and the times he spent with Catherine at Brookfield, and about the school and about the students, because we have discussed that how Mr. Chips used to have so many memories that we only because of that are able to know about his previous life, his past life. Twilight at Mrs. Wickett's, when the school bell clanged for call over, brought them back to him in a cloud. At the time of twilight, in the evening time, when there is a school bell ringing, then again memories come like clouds. यादें आती हैं उसके माइंड में, बिल्कुल बादलों की तरह, जैसे ही स्कूल में घंटी बजती है. कैथरीन स्कैम्परिंग अलॉन्ग द स्टोन कॉरिडोर्स, भागते हुए नज़र आती है उसको वहाँ पे स्टोन के कॉरिडोर्स में या राहदारियों में. लॉफिंग बिसाइड हिम एट सम हाउलर इन एन ऐसे ही वॉज रिमार्किंग, किसी कोई मज़मून पढ़ते हुए वो किसी चीज़ पे, किसी मिस्टेक पे मजाक कर रही है, हंस रही है. टेकिंग दिस सेलो पार्ट इन मोजार्ट ट्रायो फॉर स्कूल कंसर्ट. Cello is the name of instrument, and he also plays, he takes part in some music concert in the school function. Her creamy arm sweeping over the brown sheen of instrument. Brown instrument wooden instrument है जिसके ऊपर उसका गोरा हाथ उसको याद आ रहा है. सो वो देख रहा है कि किन किन जगहों पे कैथरीन ने कहाँ से किस तरह से टाइम स्पेंड किया था. शी हैड बीन अ गुड प्लेयर एंड अ फाइन म्यूजिशियन, एंड कैथरीन फर्ड एंड माफ्ड फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस. एक स्पेसिफिक काइंड का ड्रेस पहनती है दिसंबर के मौसम में जब मैचेस होते हैं. कैथरीन एट द गार्डन पार्टी दैट फॉलोड स्पीच डे प्राइज गिविंग. कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस इन एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज. ही इज़ थिंकिंग अबाउट कैथरीन वेदर देर इज़ सम प्रॉब्लम. उसकी सजेशन उसको याद आ रही हैं, या किसी प्राइज़ गिविंग सेरेमनी में उसको अकम्पनी किया था वो उसको मौके याद आ रहे हैं, उसकी बातें याद आ रही हैं. गुड एडवाइस टू which he did not always take but which always influenced him. It doesn't mean that she always took his advice. हमेशा ऐसा नहीं था कि he always listened to her, हमेशा उसकी बात उसने नहीं भी मानी, लेकिन most of the times he was agreed, but if not agreed, अगर कभी उसने उसकी बात नहीं भी मानी थी, even then उसका एक influence और एक strong असर होता था मिस्टर चिप्स के decisions पे. Chips dear, I would let them off if I were you. आफ्टर ऑल इट्स नथिंग वेरी सीरियस. जब वो अपने किसी स्टूडेंट से उनको सज़ा दे रहा होता था या उसको टेल ऑफ कर रहा होता था, तो कैथरीन हमेशा साइड लेती थी बच्चों की और उसको अर्ज करती थी टू फॉरगिव दैम. आई नो आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ, बट इफ़ आई डू आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन. दैन मिस्टर चिप्स टेल्स द रीज़न कि मैं भी ऐसा चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उनको सज़ा नहीं दूँगा तो they will repeat it. They will not stop that habit. Try telling them that frankly and give them the chance. Now, Catherine is in favor of being lenient and be forgiving. चाहती थी कि बच्चों को frankly समझाया जाए और उनको दोबारा मौका दिया जाए. And there were other things occasionally that were serious. Sometimes matters can be serious. कुछ ऐसे मौके आते थे जब गलती थोड़ी संगीन नोयत की होती थी. You know, Chips, having all these hundreds of boys cooped up here is really an unnatural arrangement. That it is not possible to have so many boys जो इस एज में हैं उनको एक छत के नीचे इस तरह से कैद रखना भी तो नेचुरल नहीं है ना. When you come to think about it, so that when anything does occur that ought not to, जब कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो नहीं होनी चाहिए या कुछ ऐसा गलत वाक़या हो जाए, तो डोंट यू थिंक इट्स अ बिट अनफेयर टू कम डाउन ऑन देम. तो उनको डांटना तुम्हें नहीं लगता कि नामुनासिब है जब उनकी इसमें गलती नहीं कि उनको यहाँ रखा गया है, क्योंकि
इस सिचुएशन में जब बच्चे इतने सारे इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ काम ख़राब हो सकता है, कोई ऐसा कुछ अनप्लेजेंट हैपनिंग भी हो सकती है. Don't know about that, Kathy, but I do know that for everybody's sake, we have to be pretty strict about this sort of thing. One black sheep can contaminate others. Contaminate आलूदा कर देना. One black sheep can contaminate others means एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. So he was in favor of being strict and deal with iron hand and do not forgive them after he himself has been contaminated to begin with. After all, that's what probably did happen, isn't it? हालांकि वो खुद भी कंटेमिनेट हो चुका था क्योंकि उस पे भी एक अफेक्ट था कैथरीन का. मे बी वी कांट हेल्प इट एनी हाउ. आई बिलीव ब्रुकफील्ड इज़ बेटर दैन अ लॉट ऑफ अदर स्कूल्स. ऑल द मोर रीज़न टू कीप इट सो. कि ब्रुकफील्ड, वो कहता है कि ब्रुकफील्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहरहाल उनको फॉलो करना चाहिए क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ओवर देयर. बट दिस बॉय चिप्स, यू आर गोइंग टू सैक हिम. क्या तुम इसको निकाल दोगे? द हेड probably will when I tell him, and you are going to tell the head. It's our duty, I'm afraid. So now they are talking about a boy. कैथरीन इज सेइंग कि क्या तुम इसको निकाल दोगे? तो मिस्टर चिप्स बोलते हैं कि नो, इवन इफ़ आई डोंट, तो हेड जो है, हेड मिस्टर हेड उसको निकाल देंगे. एंड कैथरीन सेज दैट विल यू टेल द हेड कि इज़ इट नेसेसरी कि तुम उसको बताओ? फिर वो कहते नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है. कुड नॉट यू थिंक अबाउट इट अ बिट? Talk to the boy again, find out how it began. After all, apart from this business, isn't it he rather a nice boy? फिर वो उसको अर्ज करती है कि गिव इट अ सेकेंड थाट, सोचो, दोबारा से सोचो इसके बारे में, क्या हम उसको माफ़ नहीं कर सकते? आफ्टर ऑल वो एक अच्छा लड़का है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ओ ही इज़ ऑल राइट, हाँ वो अच्छा है. देन चिप्स डियर, डोंट यू थिंक देयर ऑट टू बी सम अदर वे? अगेन वो उसको अर्ज कर रही है कि वो उसको सज़ा ना दे और उसको फॉरगिव कर दे. एंड सो ऑन अबाउट वंस इन 10 टाइम्स ही वॉज एडमेंट. एडमेंट अपने फैसले पे बरकरार रहता था. 10 में से एक दफ़ा ऐसा होता था कि वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं करता था उसके कहने पे. एंड वुडेंट बी परसुएडेड, पर उसको कन्विंस करना, उसको कायल करना मुश्किल था. In about half of these exceptional cases, he afterwards rather wished he had taken her advice. And even when he did not listen to her, जब वो उसकी बात नहीं भी सुनता था, तो हमेशा बाद में वो अफसोस करता था कि काश मैं कैथरीन की बात सुन लेता. And years later, whenever he had trouble with the boy, he was always at the mercy of a softening wave of रेमिनिसेंस. जब भी सालों बाद आज के दौर में जब भी कोई लड़का इस तरह की मुसीबत में फंस जाता था, मिस्टर चिप्स के रहमो करम पे होता था, तो वो बेचारा लड़का उन यादों के रहमो करम पे होता था कि शायद मिस्टर चिप्स को कोई ऐसी मेमोरी याद आ जाए मिस कैथरीन की और वो मुझे माफ़ कर दें. द बॉय वुड स्टैंड देयर वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट एंड वुड सी इफ़ ही वर ऑब्जर्वेंट. द ब्राउन आइज, लड़का वहाँ खड़ा होता था, अपनी पनिशमेंट का सज़ा कर रहा होता, वेट कर रहा होता था. एंड द ब्राउन आइज ट्विंकल इन टू अ शाइन एंड टोल्ड हिम ऑल वॉज वेल. और फिर मिस्टर चिप्स उसको समटाइम्स माफ़ भी कर देते थे. But he did not guess that at such moment Chips was remembering something that had happened long before he was born. That Chips was thinking, but he didn't know that why I was forgiven. मुझे क्यों माफ़ किया गया? उसको तो नहीं पता था कि मेरे पैदा होने से इतने साल पहले एक ऐसे वाक़यात हुए होंगे जिनको याद करके मिस्टर चिप्स मुझे माफ़ कर देते हैं. Young ruffian, I'm hanged if I can think of any reason to let him off, but I will bet she would have done. फिर मिस्टर चिप्स खुद से खुद गुलामी करते हैं कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, लेकिन अगर कैथरीन मेरी जगह पे होती तो डेफिनेटली वो इसको माफ़ कर देती. बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी. वो हमेशा नरमी की कायल नहीं थी. ऑन रैदर रेयर ओकेजन्स शी अर्ज सिवेरिटी व्हेन चिप्स वॉज इंक्लाइन टू बी फॉरगिविंग. समटाइम्स जब मिस्टर चिप्स कुछ मौक़ों पे माफ़ करने वाला होता था बच्चों को, तो वो उस वक्त उसका ये ओपिनियन होता था कि दिस टाइम हमें इनको माफ़ नहीं करना चाहिए, वी शुड गिव देम सम टफ टाइम. आई डोंट लाइक दिस टाइप चिप्स, ही इज़ टू कॉकश्योर ऑफ हिमसेल्फ. कि ये बहुत ही ज़िद्दी लड़का है, इस तरह के बच्चे ठीक नहीं होते हैं. इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर ट्रबल आई शुड सर्टनली लेट हिम हैव इट. कि अगर वो बच्चा आवाज़ नहीं आ रहा तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए. वट अ होस्ट ऑफ लिटिल इंसिडेंट्स all deep buried in the past, problems that had been once urgent, arguments that had once been keen, anecdotes that were funny only because one remembered the fun. तो ये सब वाक़यात, इस तरह की छोटी छोटी बातें, बहस मुबाहसे, कहानियाँ जो हम डिस्कस करें, कितना अच्छा लगता है इनको सुन के, जस्ट बिकॉज
कि हमें ये बताई जा रही हैं और किसी इंसान की यादों में हैं। डिड एनी इमोशन रियली मैटर व्हेन द लास्ट ट्रेस ऑफ इट हैड वैनिश्ड फ्रॉम द ह्यूमन मेमोरी? अगर ये सब वाक़यात इंसान भूल जाए तो क्या ये मैटर करेंगे? सो सच इज़ द वंडर ऑफ मेमोरी, मेमोराइज़ेशन ऑफ ह्यूमन्स के यादों में इंसान भी ज़िंदा रहते हैं, यादों में आपका पास्ट भी ज़िंदा रहता है कि हम जब किसी को याद रखते हैं तो वो पर्सन ना सिर्फ हम उन उस पर्सन को याद कर रहे होते हैं, उन सब वाक़यात को भी याद कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो इंसान हमारी मेमोरीज़ में ज़िंदा होता है। And if that were so, what a crowd of emotions clung to him as to their last home before annihilation. मतलब कैथरीन के जाने से पहले जो उसकी फीलिंग्स थी वो अभी भी उसके साथ हैं. He must be kind to them, must treasure them in his mind before their long sleep. उन सब यादों को वो चेरिश करता था, उनको अपने साथ रखता था. द फेयर्स ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन. अब ये कुछ ऐसे वाक़यात डिस्कस कर रहे हैं जो मिस्टर चिप्स को याद आ रहे हैं कि आर्चर्स ने रिज़ाइन किया तो किस तरह के वाक़यात हुए. अ क्वीर बिजनेस एक अजीब वाक़या था. एंड दैट अफेयर अबाउट द रैट इन डंस्टर. डंस्टर एक स्टूडेंट का नाम था जिसने एक रैट रख दिया था एक ऑर्गन लॉफ्ट में, एक म्यूज़िक वाले कमरे में, जबकि ओल्ड ओजी वाइल वॉज टेकिंग कोयर प्रैक्टिस, जहाँ पे एक बूढ़ा टीचर ओजी वाइल प्रैक्टिस कर रहा था, कोयर प्रैक्टिस कर रहा था. ओजी वाइल वॉज डेड एंड डंस्टर ड्रोन्ड एट जेटलैंड. ये दोनों शख्स मर चुके हैं कुछ मुकामात पे. कुछ एक तो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन स्टिल आप देखें कि उसकी उन दोनों शख्स की जो मेमोरीज़ हैं वो मिस्टर चिप्स के माइंड में हैं. तो द टू पर्सन आर ऑल्सो अलाइव. Of others who had witnessed or heard of the incident, probably most had forgotten. किसी को भी इस तरह से वो दोनों याद नहीं है, लेकिन क्योंकि मिस्टर चिप्स की मेमोरी में वो वाक़या याद है तो वो दोनों इंसान भी उनके माइंड में अलाइव हैं. एंड इट हैड बिन लाइक दैट विद अदर इंसिडेंट्स फॉर सेंचुरीज. He had a sudden vision of thousands and thousands of boys from the age of Elizabeth onwards. एलिज़ाबेथ के एज में जो बच्चे वहाँ आके पढ़ते थे, एलिज़ाबेथ के दौर में, दौर हुकूमत में जो बच्चे आके वहाँ पढ़े थे, उसको वो भी याद थे. डायनेस्टी अपॉन डायनेस्टी ऑफ मास्टर्स. कौन कौन से मास्टर्स उस स्कूल में आए थे. लॉन्ग एपोर्ट्स ऑफ ब्रुकफील्ड हिस्ट्री हैड नॉट लेफ्ट इवन अ घोस्टली रिकॉर्ड. ईच एंड एवरीथिंग वॉज इन हिज माइंड. ही डिड नॉट फॉरगेट एनीथिंग. उसको सब कुछ याद रहता था. Who knew why the old fifth form room was called the pit? Nobody knew कि किसी वहाँ पे एक कमरा था जिसको द पिट कहा जाता था, उसको वो क्यों कहा जाता था. There was probably a reason to begin with, but it had since been lost. इसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा, लेकिन वो रीज़न किसी को भी नहीं पता था. लॉस्ट लाइक द लॉस्ट बुक्स ऑफ लिवाई. लिवाई एक बहुत फेमस राइटर है, उसकी बुक्स भी आजकल अवेलेबल नहीं है. And what happened at Brookfield when Cromwell fought at Naseby nearby now? There we are discussing about some historical event कि जब क्रोमवेल की वॉर हुई थी तो ब्रुकफील्ड में क्या रद्द अमल था लोगों का. हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट टू द ग्रेट स्कैर ऑफ 45? वॉज देयर अ होल हॉलीडे व्हेन द न्यूज़ केम ऑफ वाटरलू. जब वाटरलू की जंग हुई थी तो तब ब्रुकफील्ड में एक दिन की छुट्टी की गई थी. एंड सो ऑन अप टू द अर्लीस्ट टाइम दैट ही हिमसेल्फ कुड रिमेंबर. ये सब वाक़यात हिस्टोरिकल इवेंट्स उसके दौर में हुए थे. जंगों की बात हो रही है कि कौन से दौर में कौन सी जंग हुई थी और ब्रुकफील्ड की क्या एक्टिविटीज़ थी. ये सब चीज़ें उसको याद थी. और फिर उसको ये भी याद आता है कि जो मिस्टर वेदरबाय के साथ उसका इंटरव्यू हुआ था उसमें मिस्टर वेदरबाय ने क्या कहा था. लुक एज इफ़ वी शैल हैव टू सेटल विद प्रूशियंस और सेल्स वन ऑफ दीज फाइन डेज. कि हमें जर्मनी के लोगों के साथ शायद बैठ के बातचीत करनी चाहिए. तो उसको इवन लोगों की बातें भी याद रहती थी, कमेंट्स भी याद रहते थे जो लोग मुख्तलिफ मुकामात पे करते थे. When Chips remembered things like this, he often felt that he would write them down and make a book of them. And during his years at Mr. Wicked, he sometimes went even so far as to make desultory notes, boring notes, in an exercise book. उसने सोचा कि मैं इन वाक़यात को लिख लेता हूँ. आई शुड राइट देम डाउन टू कीप देम सेफ. उसने ये कोशिश भी की, बट ही वॉज सून ब्रॉट अप अगेंस्ट डिफ़िकल्टीज़. वो नहीं कर पाया. द चीफ वन बीइंग दैट राइटिंग टायर्ड हिम, क्योंकि वो थक जाता था. बट बोथ मेंटली एंड फिज़िकली, मेंटली भी और फिज़िकली भी वो थक जाता था. Somehow too his recollections lost much of their flavor when they were written down. The story about Rushton and the sack of potatoes, for instance. एक और भी रीज़न थी. Mr. Chips always felt that if we write something, especially when it is the memory, so उसका वो मज़ा नहीं आता जब वो हम लिख लेते हैं. जैसे कि एक जो आलू की बोरी वाली कहानी थी या रश्टन की कहानी थी, जब उसको लिखेंगे तो वो बहुत अजीब लगेगा. इट विल साउंड वेरी स्ट्रेंज, बट
When it happened, it was a very interesting incident. It would seem quite tame in print, but Lord, how funny it had been at the time. It was funny too to remember it through, perhaps, if you didn't remember Rushton. कहानी को याद रखना बहुत फ़नी था, चाहे आप उस इंसान को भूल भी जाएं जो उस कहानी में था. Who would anyway after all those years? इतने सालों के बाद कौन याद रखेगा उस शख्स को? It was such a long time ago. Mrs. Wickett, did you ever know a fellow named Rushton? Before your time, I dare say. आपकी यहाँ पे आने से पहले रश्टन आया था. Went to Burma in some government job. Or was it Borneo? Very funny fellow Rushton. वो बहुत ही मज़ाहिया इंसान था. And there he was, dreaming again before the fire, dreaming of times and incidents in which he alone could take secret interest. We have seen that he is a man of dreams. He always thinks about memories, about past times. Funny and sad, comic and tragic, they all mixed up in his mind. Good and bad times उसको याद आते हैं. And someday, however hard it proved, he would sort them out and make a book of them. Maybe someday he will write something. हो सकता है कि वो फ्यूचर में जाके इसके बारे में कोई किताब लिखे. So now, dear students, note down the questions of today's assignment. So your question number 1 is, how did the memories of Catherine go through Chip's mind? How did the memories of Catherine go through Chip's mind? And your question number 2 is, what were the problems in writing a book in his past memories? I repeat this question, what were the problems in writing a book in his past memories? So these are your 2 questions for today, and inshallah tomorrow we will meet with a new lecture, and till then take care. Allah Hafiz.